ओके 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 Yes. ओके। तो चलो, आज मैं इससे पहले आपको एक असाइनमेंट देना चाहूंगा फर्स्ट क्लास से पहले। यू हैव टू लर्न ions, cation and anions, that is in your chapter 3 in class 9th। आपको याद होगा, आप Yes, sir. बहुत फार्मूला मेकिंग किया होगा। जी सर, फॉर्मूला मेकिंग भी थे। आज आपको मैं एक ही होमवर्क दे रहा हूँ, पहले से ही बता देता हूँ बेटा। यू हैव टू डू फार्मूला मेकिंग अगेन। दैट मीन्स यू हैव टू लर्न कैटायन एंड एनायन। अगर Yes. आपके पास अगर वो डेटा ना हो, सो आई विल सेंड टू यू, गिव मी योर नंबर, आई विल। Yes. अदरवाइज यू शुड रिवाइज बाय योरसेल्फ, ओके। Yes, sir. तो चलिए, मैं आपको फ्लो बता देता हूँ। आर यू इन सीबीएसई स्टूडेंट, आई थिंक? Yes, I'm in CBSE. एंड यू स्टडी इन विच स्कूल? डीपीएस? No, sir, Indian High School, ओके IHS. ओके। सो ओके ओके, वहां पर स्कूल ओपन हो गए बेटा आपके? नहीं सर, अभी तक नहीं। ओके। अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री बेटा, तो वी हैव टू लर्न 5 चैप्टर इन क्लास 10th। फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। Yes, sir. सेकेंड चैप्टर इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। थर्ड चैप्टर इज मेटल एंड नॉन मेटल। Yes, sir. Fourth one is carbon and its compound. Yes, sir. And fifth one is classification of element. Yes, sir. So if you say general introduction of all these chapters, beta, so chemical reaction and equations, just the types of the reaction, the balancing of the equation, and some examples of the type of the reaction and different reactions we have to study at that part. Yes, sir. In acid, base and salt part beta, we have to study about acid, base and salt, as well as the concentration part, the types of salt, Okay. okay, and different reactions of different salt, like baking soda, baking powder, bleaching powder, sodium hydroxide, sodium chloride, their preparation as well and their uses as well. Okay beta, Yes, sir. this chapter is quite, we can say, uh, composed of large fraction of your syllabus, because Yes, sir. in this chapter, along with metal and non-metal, as you studied in class 8th, we have to learn about metallurgy. So does it mean like metal oxide and metal non-oxide, like metal dioxide, I mean? Yes, definitely in this chapter we will study about metal oxide, okay, non-metallic oxide, neutral oxide. Okay, this is the basic part of the this metal and non-metal. Along with, we have to learn about metallurgy. And what is about metallurgy? What is all about metallurgy? That is extraction of element. Okay. Extraction Yes, of sir. element. What is the extraction? That means, beta, we go in a rock. If we find iron, definitely we will not find iron as a pure material. So we have to extract the material, and by refining of iron, we will use the pure metal. Okay, beta. So these steps we Yes, sir. follow for the extraction of element. Carbon and its compound, the most important chapter of your syllabus, and this is the part of organic chemistry. You know, Yes. organic chemistry is the chemistry of carbon. So in this part, we have to learn Okay. about the organic chemistry part. Okay, and I think Yes. दिस चैप्टर, आई थिंक वी हम लोग पढ़ेंगे इसको करीब करीब 1 से 2 महीने पढ़ेंगे, तो काफी बड़ा चैप्टर होने वाला है। और जी सर।
Carbon classification of elements, beta. So do you know about periodic table? Yes, I know about periodic So, table. in this chapter, we have to learn about the periodic table, their origin. Different scientists gave different assumptions of periodic table, properties of Yes, sir. uh, elements. We have 118 elements till now. Yes, sir. Okay, so 118. in this chapter we have to study about the criteria of classification, why classification is important. If we didn't classify the element, then what will happen now, beta? So इस सब चीजों को हम यहाँ पर कवर करेंगे. तो आई थिंक आप जी सर. पूरा मटेरियल कवर हो गया है कि व्हाट इज हमारा सिलेबस क्या है एंड हमें इस ईयर के दौरान करना क्या है. ठीक है बेटा. यस सर. अब बात करते हैं इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें और क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताता रहूंगा बेटा, वो चैप्टर के साथ ही बताता रहूंगा, और जरूरत पड़े यस सर. मैं आपको वर्कशीट वगैरह भी प्रोवाइड करता रहूंगा. यस सर. जी. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा. कॉपी पेन है आपके पास? यस सर. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर. That is chemical reaction and equation. Okay. So बेटा जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ेंगे we have to learn about physical change and chemical change. यस सर. Okay. So Sanjana, can you define what is physical change? Physical change is basically a change in which no new material is no new substance is found, like formed, and there's only change in shape, size, etc. Okay. Whereas in chemical change, new substance is formed, and Okay. it is irreversible. Okay. Suppose Sanjana, you are a chemistry student, and because you are telling the physical and chemical change in general. Okay. So Suppose you are chemistry student now, you have to define what is physical change and what is chemical change. no new ये solvent. जो आप बता रहे हो ना, ये हर बच्चा जानता है. ठीक है, मतलब जी सर. कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने ऐसी ना बताई हो जो कोई बच्चा ना जानता हो. दैट इज. बट अगर आपको Yes. साइंटिफिक डेफिनेशन देनी हो फिजिकल चेंज की, नए प्रोडक्ट नहीं बनते, नो न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड एज यू से. सो व्हाट इज द रीजन? Yes. So as like two different substances, like there's only change in the shape and all that. Like Okay, no new okay. other substances added, maybe. Okay, let's suppose Yes. sir. we have ice and we are converting this ice into liquid. Okay. Yes, sir. Type of change this is? This is physical change. Why? Sir, because there's only change in state. Like Okay. it's only changing. Okay, you are right. You are right. 100% you are. But what is the reason behind it? I am telling to this only. So no other external properties. Like for example, over here it's only happening because of the normal heat, maybe, or something. आप I'm not बहुत ज्यादा sure. आप बहुत ज्यादा आउटर एनवायरनमेंट पे सोच रहे हो. आप केवल जस्ट इक्वेशन देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा. बिकॉज एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट वी हैव टू डिफाइन. So the equation is same, H2O, H2O. Yes, very good, very good. Yes बेटा, yes, yes. Yes, sir. आप कुछ बोल रहे थे. Sir, I told that वो दोनों में equation is the same, H2O and H2O only. It's like बिल्कुल, a part of water. बहुत अच्छा बताया आपने.
आज से आप नया डेफिनेशन जान गए फिजिकल चेंज का। जी सर। देख लीजिए, ये भी वाटर है बेटा, और ये भी। यस सर। आप देख रहे हैं, क्या कोई चेंज हो रहा है? नो सर। क्या कोई नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? नहीं। क्या कोई पुराना बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? नो। So tell me, what is physical change? Physical change is a type of change in which no new bond are formed and no old bond are broken up. यस सर। Because जस्ट मिनट सर, chemistry, मैं इसको सिर्फ because मैं नोट लिख कर रहा हूँ, आप लेती परेशान मत हो। केमिस्ट्री तो हूँ। यही जी। बोलती है कि आपको बॉन्ड पे यस खेलना सर। है। ठीक है। सो हम्म। आप अगर ये लिखोगे ना तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं इसलिए अच्छी लैंग्वेज आपको लिखवा रहा हूँ बस। जी सर। This change is a type of change in which no new bonds are formed and no old bonds are broken. ओके बेटा। यस सर। यस। बस जो पहला फैक्ट आपको एग्जाम में लिखना है वो ये लिखना है। अब यस दूसरा सर। फैक्ट क्या हो सकता है? अब अगर बॉन्ड नहीं बनेंगे बेटा, सो न्यू न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। यस सर। भी बिल्कुल सही है। जी। अगर बेटा नया सब्सटेंस नहीं बनेगा तो ओनली स्टेट इज चेंज या आर चेंज्ड, यस सर। ओनली स्टेटस चेंज। कैन बी चेंज्ड। दिस चेंज इज रिवर्सिबल बाय नेचर। यस सर। ओके। यस सर। ओके। अब एक क्वेश्चन आया कि यहाँ पर क्या हीट की रिक्वायरमेंट होती है? इस टेम्परेचर और हीट रिक्वायर फॉर दिस चेंज? Yes, sir. For changing from ice to liquid, it is required. Definitely we require heating effect, and when we convert liquid into ice, definitely we have to freeze it out. Okay, Yes, sir. so definitely heat can be required, but क्वेश्चन आता है कि संजना, आपने हीट दिया, Hmm. आपने हीट सप्लाई किया, बट बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हीट का काम तो, To direct heat. क्योंकि बॉन्ड तो ब्रेक हो जाना चाहिए हीट देने पर, बट वाई यहाँ पर Hmm. बॉन्ड क्यों नहीं हुआ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Sir, maybe direct heat नहीं जा रहा है, जैसे कि like either it's from the nature. I'm just thinking क्योंकि like ice हम लोग जब रखते हैं बाहर, is either from the like a normal environment का temperature ओके से हो रहा है, या ओके नहीं तो हम लोग अगर स्टोव या इसमें रखेंगे, कोई ना ओके कोई वेसल रहेगा like ओके utensil, तो उससे डायरेक्ट हीट नहीं जा रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है, या नहीं ओके। तो एग्जैक्टली पूरा बर्न नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या मैं एक बात बोल रहा हूँ यहाँ पर कि जो पूरा का पूरा हीट है, ऑल द अमाउंट ऑफ हीट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। क्या यस सर। ये? बिकॉज बेटा नाइन्थ यस। क्लास में आपने सीखा है कि जब भी स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, अगर आपको पता हो। यस सर, वी लर्न दैट। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, जब भी स्टेट चेंज होती है, व्हेनेवर द स्टेट इज चेंज, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। यस सर, नो चेंज इन टेम्परेचर। और टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ तो बॉन्ड भी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी हीट कहाँ यूटिलाइज हो गई? स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज हो गई। ओके। यस सर। तो heat can be given, heat cannot be given, it may be, but there is no breaking or making of bond. That is means no dissociation and association of bonds in physical change. That is all about physical change. Okay. यस सर। Is any doubt? यस। नो सर, दिस इज Okay. क्लियर। तो अभी आपको एक नई चीज समझ में आ गई कि जहां भी नए बॉन्ड नहीं बनते हैं, पुराने बॉन्ड नहीं ब्रेक होते हैं बेटा, ऐसे चेंज को फिजिकल चेंज बोलते हैं। Isn't it? यस। यस सर। चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा। जी सर। जस्ट अ मिनट सर, एक मिनट में इसको नोट डाउन कर लेती हूँ। स्टेट कैन बी चेंज्ड, देन आफ्टर लास्ट पॉइंट, दिस चेंज इज इरिवर्सिबल बाय नेचर।
Yes, sir. Done, sir. Okay, very good. Yes. Okay. Next is chemical change. So chemical change is just opposite to the physical change बेटा. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? The change Yes, sir. in which new bonds formed and old bonds are broken. ओके देखिए बेटा, यहाँ पर अभी एग्जांपल लेंगे, उसके बाद अपन Yes, sir. एक्चुअल में तो यहाँ पर मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ H2 गैस प्लस O2 गैस. आपको पता है वेन एवर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन डेफिनेटली इट फॉर्म वाटर. ओके लिक्विड. So water. Yes, sir. आपको पता है बेटा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच ये ऐसा बॉन्ड है, टू मॉलिक्यूल्स वी आर टेकिंग अबाउट. एंड यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच ऐसा बॉन्ड होता है Yes, sir. और वाटर मॉलिक्यूल आप ये टू वाटर मॉलिक्यूल आर फॉर्मिंग. तो ऐसा बन रहेगा. अब देखिए आपको क्या करना है. आपको जी sir. नजर आ रहा है बेटा यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है एंड हेयर वी हैव नो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज O oxygen hydrogen bond. So definitely beta this bond is being broken. This bond is being broken and Yes, sir. It's been broken. new bonds are formed. So what is the conclusion of this problem? Two HH bond are broken. One OO bond is broken. And this OH, that means beta 4 OH bond is formed. Okay, 4 OH bond is formed beta. Okay, and जी sir. and beta the very important thing as I am discussing with you, जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज इवॉल्व्ड. ओके ये आपको याद रख. Yes, sir. पूरी केमिस्ट्री आप जब तक पढ़ेंगे क्लास 12th या उसके बाद तक बेटा याद रखना है whenever new bond is formed, whenever new bond is formed, okay बेटा, Yes, sir. energy is released, energy is released. ठीक है, हमारी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है. ठीक है, याद रखेंगे बेटा. Yes, sir. देखो ये तो आपका साइंटिफिक डेफिनेशन हो गया, बाकी आप जानते ही हैं केमिकल चेंज में जो हर बच्चा लिखेगा न्यू सब्सटेंस It's formed. इज फॉर्म्ड बेटा. Yes, sir. रिवर्सिबल और नॉट, इट इज नॉट रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल बेटा, ये भी कह सकते हैं अपन. ओके और स्टेट चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. इट डिपेंड अपॉन द इक्वेशंस बेटा. स्टेट Yes, sir. नॉट बी चेंज. Yes, sir. अच्छा संजना, एक डाउट मेरा ये भी है, क्या इस इक्वेशन में एनर्जी की जरूरत पड़ रही है? क्या इस सिस्टम में एनर्जी की नीड हो रही है आपको? Yes, sir. एनर्जी की नीड हो रही है क्योंकि गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है. बिल्कुल बात एंड सही लाइक है. न्यू बॉन्ड. वेरी Yes, गुड, sir. बहुत बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने. देखो यहाँ पर आपको एनर्जी आपकी यूटिलाइज हो रही होगी और यहाँ पर आप Yes, sir. एनर्जी मिल रही होगी. यू आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम हेयर एंड यू आर सप्लाइंग एनर्जी टुवर्ड्स एच एच बॉन्ड एंड ओ बॉन्ड. ओके बेटा. Yes, sir.
So if net energy is positive, that means you are getting energy. If net energy is negative, that means you are losing your energy. Okay. Yes, sir. तो ऑलवेज याद रखना है, केमिकल चेंज में हीट या तो लगेगी या रिलीज होगी. दैट मीन्स बेटा Yes, sir. केमिकल चेंज जब भी होगा तो प्रोसेस आपका या तो एंडोथर्मिक होगा. एंडोथर्मिक मीन्स हीट इज एब्जॉर्बिंग, और या थर्मिक होगा. Exothermic. मतलब यहां पर आपका हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा, ऐसे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां पर आपकी यू आर गेटिंग हीट. उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा हो गया. एंडोथर्मिक में एब्जॉर्बिंग एंड यू आर गेटिंग हीट. ठीक है, कोई दिक्कत बेटा यहां तक? सर एब्सॉर्बिंग हीट एंड गेटिंग हीट तो सेम हो गया ना सर, या डिफरेंट कैसे होगा? एब्जॉर्बिंग मींस जैसे आपने एब्जॉर्ब मतलब उसने लिया, जैसे आपने आइस को हीट दिया ना, तभी वो पानी में कन्वर्ट हुआ. और ओके, यस सर. रिलीज का मतलब आपने आपने वुड जलाया, लकड़ी जलाया, तो आपको हीट मिली, दैट इज गेटिंग हीट. यस सर. जी. यस सर, डन सर. ओके बेटा, अब बात करते हैं बेटा हाउस यू कैन आइडेंटिफाई ए केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस और नॉट. सो हेडिंग लिखिए बेटा, वेज टू फाइंड केमिकल चेंज. मतलब हमें ये पता करना है कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. इसमें पहला हम लोग को पॉइंट लिखना है. द फर्स्ट पॉइंट, जैसे हम पता लगाएंगे केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं बेटा, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, या इवोल्यूशन ऑफ हीट भी लिख सकते हैं बेटा. तो यस सर. फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ हीट. इवोल्यूशन ऑफ हीट. ओके बेटा, evolution of heat. Yes sir. Evolution of heat. You know what is evolution? So like basically change of heat. Evolution means you are getting heat. You are getting heat means Yes sir. okay, you are means temperature is increased basically. Evolution means evolution of heat means we are increasing the temperature. Okay. Yes sir. Okay. You know Fuljadi? Yes sir, Fuljadi. Ji. You know which metal is Yes sir. which metal is present in Fuljadi? That I'm not aware of, sir. Magnesium. Okay. Magnesium. Learn beta. If you one experiment which is given in your NCERT textbook beta, if you burn magnesium wire, and burning is basically done in presence of oxygen. Yes sir, it's done in presence of oxygen. So we see a spark. We see a spark. You know beta what is a spark? Yes sir, so like chat kind of yes thing. And this is white. This is burnt white dazzling flame. Dazzling means ऐसे निकलती है ना फुलझड़ी. जी सर. ओके, सो व्हेन बेटा अगर हमने देखा होगा ये मैग्नीशियम वायर को आप जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यू आर गेटिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड. डेफिनेटली यू आर गेटिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट इज व्हाइट पाउडर. It is a white powder beta. Yes sir. Okay, and this is shiny. You know Fuljadi is a very shiny, and something is yes sir. Magnesium is brown by nature. Okay.
Okay, beta. So when we burn this Yes, sir. magnesium with oxygen, we are getting, or we will get magnesium oxide with white dazzling flame as a white powder. Okay, beta. So जी sir. क्या देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू कंपाउंड. ओके. Yes, sir. डेफिनेटली मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच क्या हो रहा होगा, नए बॉन्ड बन रहे होंगे. डेफिनेटली बॉन्ड आर बीइंग फॉर्म्ड बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तभी तो नया कंपाउंड बना मैग्नीशियम ऑक्साइड. Yes, sir. और अगर नया कंपाउंड बना, दैट मीन्स बेटा दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज. Change. Yes, sir. तो याद रखना है कि जब भी इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, ठीक है, तो वहां पर केमिकल चेंज होता है. यस और नो? Yes, sir. ओके. I never did. कई बार, हाँ, कई बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि आप देखा होगा, अगर आपने मैग्नीशियम वायर को बहुत दिनों तक रख देते हैं, आप मान लीजिए आपने इस ईयर दिवाली में फुलझड़ी यूज की और आपकी फुलझड़ी दो बच गई, आपने रख दिया, तो फिर क्या होता है? क्या फुलझड़ी जल जाती है तुरंत? नहीं, चलती नहीं है सर. हाँ, वेरी गुड. क्यों नहीं जलती है? कि उसमें लाइक बहुत दिन तक रखा हुआ होता है, लाइक उसको हीट नहीं मिलता है बेसिकली, लाइक टेम्परेचर मे बी. अरे हीट तो देते हैं ना, हम वो तो कैंडल के सामने उसको लगा रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं जल रही है वो? आई डोंट नो. केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री, कुछ ना कुछ तो केमिस्ट्री हो रही होगी, ये तो समझते हो आप. जी सर. देखो, तो फुलझड़ी हमने रख दी, इन्वायरमेंट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उस यस सर. ऊपर क्या हो गया, उस फुलझड़ी के ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर आ गया. ओके. अब वो यस सर. मैग्नीशियम नहीं रहा, दैट इज इट बिकम मैग्नीशियम कार्बोनेट नाउ बेटा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें धूप में रखना पड़ेगा, अदरवाइज वी हैव टू रब इट बाय सैंड पेपर. अगर आप सैंड पेपर से रब कर लोगे, तब भी आपका ये मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. यस सर. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई वी हैव टू रब मैग्नीशियम वायर with the help of sandpaper. So you know that because in environment carbon dioxide gas is present. When this carbon dioxide gas mix with magnesium, it form the layer of magnesium carbonate. That's why it is not burning now. That so we have to remove carbonate layer and we have to rub by sandpaper. Isn't it? यस सर, दैट्स क्लियर सर. कोई डाउट बेटा यहाँ तक किस पॉइंट पे आपको? नो सर. मैं रफ मैं आगे आगे बढ़ जाऊं? जी सर. नोट करोगे आप कि कर लिया? सर कर लिया ये वाला पार्ट. ओके. अब सेकंड बेटा बात आती है चेंज इन टेम्परेचर. जी सर. जब कभी भी चेंज इन टेम्परेचर होगा, तो बेटा हमारा केमिकल चेंज होगा. कैसे? देखो, जैसे आपने CaCO3 लिया, कैन यू नेम दिस कंपाउंड CaCO3 बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट. वेरी गुड. कहां पर मिलता है ये, किस? सर लाइक टीथ. नो, आई डोंट नो. दैट इज व्हाइट मार्बल. व्हाइट मार्बल. व्हाइट मार्बल. जी सर. Once CBSE asked this question, Taj Mahal is made of which material? So answer is calcium carbonate. Okay. Yes sir. Calcium carbonate. Okay. So when you heat this compound, you know delta is a symbol of heating. Yes sir. That is heating effect. Hmm. So you are getting calcium oxide plus CO2. It is gas, it is solid. So basically, Yes, beta, you are changing the temperature, you are giving the heat. So definitely when you give the heat beta, definitely you are getting the new compound. Okay. Because इधर पर क्या होगा, बॉन्ड्स कैल्शियम और कार्बन के बीच होगा, और यहाँ पर बॉन्ड कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच है, तो डेफिनेटली न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग. ओके. यस सर. दूसरा एग्जांपल अपन लिख सकते हैं, CaO प्लस H2O is equal to CaOH whole twice plus heat. सर ये वाला क्या होगा, इसको क्या कहेंगे? आई डोंट नो. CaOH2. That is कार्बन ऑक्साइड. calcium oxide. Calcium oxide. Yes. Sorry sir. And its common name is quicklime.
Okay, yes sir, quickly. It is calcium oxide and its common name is slate lime. Slate lime. So you know that is how whitewashing is done. Whitewashing in walls of the room. Yes sir, like the So quick you lime. know the process when we take calcium from the market and we when we pour with water we are getting we will get heat. You know this reaction in your home. No, I've just seen them painted with white, like whitewash it just Okay. generally. So okay, Apart. this material is used for whitewashing. This is important बेटा. You have to learn Yes sir. बिकॉज कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको बताता जा रहा हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाएंगे Yes sir. और ये आप मटेरियल मार्केट से लाते हो वाइट वॉशिंग करने के लिए Okay. मार्केट से लाते So, just one question. If हो like both of them are said calcium oxide and both are like calcium oxide, then why is one called like quick lime and the other called slate lime? बिकॉज बेटा दिस इज द हाइड्रोक्साइड ऑफ कैल्शियम एंड दिस इज द ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम अगर आप मार्केट से लाते हो ना इट इज वेरी सॉलिड मटेरियल व्हेन वी Hmm. pour in water definitely we are dissolving it into water that means to make soluble compound and this soluble compound or we can say precipitated compound is known as calcium hydroxide so this is oxide this is hydroxide Yes, sir. okay Sorry, I wrote oxide pencil. okay so Hydroxide. Yes. so आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर भी संजना कंपाउंड चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली इट इज अ केमिकल चेंज Yes, sir. एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज स्लेकिंग ऑफ लाइम Slaking of lime. slaking Okay, of sir. lime you have to learn this reaction it is slaking of lime so Yes, sir. question may be how slaking of lime is important how slaking of lime is done so slaking of lime is basically used for whitewashing of the products okay Yes, sir. so two things we done we did till now beta evaluation of heat Evaporation of heat change and in change temperature in temperature. third is change in color Yes, sir. change in color that means बेटा अगर कभी भी चेंज होता है कलर में आपको पता होना चाहिए बेटा, हर एक कंपाउंड का अपना एक स्पेसिफिक कलर होता है ईच कंपाउंड इज हैविंग Yes, sir. स्पेसिफिक कलर और अगर कलर में चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली बेटा केमिकल चेंज होने वाला है ओके Okay. Yes, sir. जैसे मान लीजिए मैं क्या करूं यू नो आप क्या करो आप लेड नाइट्रेट आपके पास है एक चीज लेड नाइट्रेट ओके Yes, sir. और इसको आप हीट करो बेटा इसको बाय द वे हीट करते हो लेड नाइट्रेट का फार्मूला ये होगा बेटा दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस Yes, sir. आपने हीट किया बेटा तो ये बनेगा PbO प्लस PBO. NO2 प्लस O2 PbO is nothing beta it is lead oxide Yes. NO2 is nitrogen dioxide okay and this NO2 is having brown vapor red brown vapor it is a gas having red brown fumes mean droplet okay. Yes, sir. So when we see the red brown fume beta we can easily identify this is a brown type of compound but now we are getting the gas which is having red brown vapor so we can say that we are observing the change in color and definitely there is a chemical changes occurred Yes, sir. आप मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा Yes, I understood, sir. ओके ठीक ऐसे है ही चेंज इन कलर है तो कि yes. यस 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 वेरी गुड अगर मान लीजिए आपने क्या किया कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन में पास किया तो आपको कॉपर प्लस वाटर मिला कॉपर ऑक्साइड का कलर बेटा ब्लैक होता है ये ब्राउन टाइप का कलर होता है इसका Yes, sir. तो आपने ब्लैक से ब्राउन कलर मिल गया बेटा दैट मींस डेफिनेटली देयर इज अ केमिकल चेंज Okay. Yes, sir. Got it, sir.
तो अगर कहीं भी चेंज होगा टेम्परेचर पर, कलर पे बेटा, तो आप आराम से कह पाओगे कि केमिकल चेंज इज बीइंग टेकन। Chemical change. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। You know what is precipitate, beta? So basically, is forming of gaseous to gas to liquid No, droplets. no, 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 no. No. Like No. आपने कभी क्या आपने शुगर को डिसॉल्व किया है पानी में, शक्कर घोली है पानी में? जी सर. आप देखते होगे एक मिनट तक शुगर डिसॉल्व होती है, उसके बाद डिसॉल्व होना बंद हो जाती है। Yes sir. Yes sir. जो Sorry. जो जैसे आपने मान लीजिए कोई आपने कोई मेडिसिन पानी में घोली, तो वो अगर नहीं घुल रही है तो वो आपने देखोगे बॉटम पे बैठ जाती है, वो बॉटम पे चली जाती है। Yes sir. That insoluble part of any substance is known as precipitate. Okay. Yes sir. तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस। और याद रखना है बेटा, ये इनसॉल्युबल जो पार्ट होता है उसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से बनाते हैं। जी सर. डाउनवर्ड एरो का मतलब संजना समझ में आता होगा आपको, मतलब बहुत दिमाग नहीं। डाउनवर्ड का मतलब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब वो नीचे बैठ जा रहा Better. Yes sir. है। और याद रखना है हर एक प्रेसिपिटेट का हैविंग स्पेसिफिक कलर। इस चैप्टर में बहुत सारे आपके अभी कलर आएंगे तो बताता जाऊंगा, बट आपको अभी याद करने लेना है कि हर एक प्रेसिपिटेट का अपना एक स्पेसिफिक कलर होता है। ठीक है बेटा? Yes sir. लेट सपोज बेटा, अगर मैं यहां पर ले रहा हूं लेड नाइट्रेट Hmm. और वहां पर मैं पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर रहा हूं बेटा, Yes sir. फार्मूले में प्रॉब्लम हो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि फार्मूला मेकिंग अगर नहीं आई तो पूरा चैप्टर आपका बेकार हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार जी. बोल रहा हूँ संजना कि आपको लर्न कर लेना है। मैं अगले क्लास में आपसे 5-10 मिनट पूछूंगा भी। जी सर. तो बेटा अगर आपको क्या करना है, यहाँ से लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ ऐड कर देना है, तो यहाँ पर आपका PbI2 बन जाएगा प्लस Yes sir. बन जाएगा KNO3 बन जाएगा। ठीक है? और याद रखना है बेटा संजना, PbI2 एक येलो कलर का पीपीटी होता है। Yes sir. Yellow color. और अगर आप देखोगे बैलेंसिंग की बात, तो यहाँ पर NO3 बेटा 2 है, तो यहाँ पे आप 2 कर लोगे। यहाँ I आपका Hmm. तो यहाँ पे आप 2 कर लोगे। सो जी सर. संजन आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, यहाँ पर आप हमें एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है और उसका कलर स्पेसिफिक। That means beta we are getting new compound, and if we are getting new compound, definitely it is a type of chemical change. Yes sir. Sir. Is any doubt बेटा? No sir. It's fine sir. ऐसे ही बेटा अगर आप AgNO3 में सिल्वर नाइट्रेट है आपका, इट इज सिल्वर नाइट्रेट, and you are adding NaCl beta, Hmm. Sorry. Right. so we will get AgCl plus NaNO3. NaO3. Yes sir. AgCl is white by nature, white PPT by nature. So we are getting new color that is white by nature. So we can say that the Yes, sir. compound is being forming, Yeah. is formed. Okay. Is there a doubt, beta? No sir. It's fine sir. It's clear sir. Okay. Last is evolution of gas. Evolution of gas. Okay. That means, beta, if any of the gas is being evolved in any reaction, so you know gas is basically denoted by this symbol upward arrow. That means it is getting high. Okay. Yes sir. Whenever we place the upward arrow, okay, that means we are forming a gas, or we can say the gas is being formed. Okay.
Yes, sir. Yes, sir. So whenever beta any metal is Sorry, sir. treated with any acid, dilute, Metal plus. Hmm. you know two types of acid, that is diluted and concentrated. Yes, sir. Diluted and concentrated. Okay, I've we heard will about get it. salt and hydrogen gas. Hydrogen gas. Like if we are using zinc plus we are using dilute H2SO4, so we will get zinc sulfate plus hydrogen gas. And Yes, sir. this hydrogen gas is evolving, so we can denote it by upward arrow beta. If this Yes, sir. is evolved, we can say that new gas is being formed and the chemical reaction is taking place. Yes, sir. So मैंने आपको 5 तरीके बताए बेटा, जैसे आप बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं। हो सकता है एक जी. रिएक्शन में आपको एक से ज्यादा तरीके मिल जाए, हो सकता है इनमें से एक तरीका मिले, बट इफ देयर इज अ केमिकल चेंज, इनमें से कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। दैट इज द Yes, sir. chemical evolution of heat, change in temperature, change in color, formation of precipitate and formation evolution of gas, isn't it? Yes, sir. यहाँ तक कोई Yes, sir. It's clear. No, sir. It's clear and clear. ओके, आगे बढ़ा जाए फिर। जी, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब बेटा अपन बात करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। Hmm. केमिकल रिएक्शन क्या होता है, या बोले केमिकल इक्वेशन क्या होता है। Chemical equation. ओके, तो सबसे पहले मुझे बताओ संजना कि इक्वेशन क्या होता है। बहुत बेसिक सी चीज से बात करेंगे आज। इक्वेशन क्या होता है? सर, टू बेसिकली एलिमेंट्स को अगर एक साथ करना अरे हो भैया, तुम बहुत न नहीं. समझ जाती हो, तुम बहुत ज्यादा, देखो बहुत मजे के साथ पढ़ाई कर रही है आप ना, बहुत एकदम पढ़ाई में खो गई है। मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन की, आप केमिस्ट्री पढ़ने लगे। जब मैं बात करता हूँ आउटर इन्वायरमेंट की, तो आप फिर केमिस्ट्री में आ जाते हो। अबे मजे से पढ़ना है, दिमाग को मतलब हैम्पर ना करो, वी आर इंजॉय करो जी पढ़ाई। सर. इक्वेशन बताओ क्या होता है, इक्वेशन केवल। इक्वेशन जस्ट एक कोई भी अगर दिखाना है कि ऐड करना है, जैसे कि मैथ्स में भी इक्वेशन हाँ वो हाँ, सब. उसी मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैथ्स बताओ, मैथ्स में इक्वेशन क्या होता है? सर, मैथ्स में अगर कोई भी चीज को दिखाना है कैसे ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या लाइक क्या क्या हो रहा है उस में, हमें कैसे आंसर मिल रहा है वो आंसर, हाँ, उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं. अच्छा, मतलब आप तो ये पता होगा मैथ्स में कि जब भी इक्वेशन लिखते हैं तो x इज इक्वल टू वाई टाइप का लिखते हैं, इजंट इट? जी सर. यस सर. मतलब दो क्वांटिटीज को इक्वलाइज करते हैं, हम्म. ऐसे कुछ। जैसे आप यस. होगा, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इस टाइप का कुछ इक्वेशन लिखते हैं ना। यस सर. तो दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं या उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यही बात तो करते हैं मैथमेटिकल में। यस सर. सो केमिकल इक्वेशन क्या है? ए मैथमेटिकल वे टू रिप्रेजेंट a true chemical change। बताओ अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, समझ में आई सर. किसी भी केमिकल चेंज को मैथमेटिक्स में लिख दो बस, मैथमेटिकल वे पे लिख दो, आपका केमिकल इक्वेशन तैयार हो गया। जैसे जी सर. मान लीजिए आपका लिखा हुआ है, आपने लिखा यहां पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। वाटर. यस सर. जो मैंने लिखा है बेटा संजना, ये वर्ड्स में लिखा है, ये वर्ड इक्वेशन, हम्म. एंड यू हैव टू चेंज इट टू केमिकल इक्वेशन। हमें यस सर. केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है। तो हाइड्रोजन इज H2, H2 ऑक्सीजन इज plus O2. O2 इज इक्वल O2. टू H2। यस सर. हम क्या कर, एक मैथमेटिकल वे पे ही तो लिख रहे हैं, ये ऐड लिख रहे हैं, ये हम लोग ये जो हम्म.
ये इक्वलिटी का साइन दे रहा है, ये जो एरो है बेटा वो Yes, sir. का साइन दे रहा है। आपको ये भी पता होगा जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, Yes, sir. Reactant and या आप बड़ी क्लासेस में जाइएगा तो आप इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, substrate. सबस्ट्रेट Okay, बेटा। sir. और Yes, sir. इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। Product. डेफिनेटली जब भी हम लोग बेटा इस तरह के रिएक्शन लिखते हैं तो दैट मीन्स बेटा हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। Hmm. अच्छा, कई बच्चे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सर ये क्या है, फिर ये क्या है? आपको पता है ये साइन, Sir, एक तरफ. हाँ. ये जी, साइन आपका रिवर्सिबल है, Yes, sir. रिवर्सिबल है। दैट मीन्स बेटा हमने आइसक्रीम लिया, आइसक्रीम मतलब सॉलिड हुआ, इसको मेल्ट किया तो लिक्विड बना, पानी बना, फिर से पानी को फ्रीज कर दिया, सॉलिड बन गया। Solid बन गया. जी sir. तो ये भी केमिकल इक्वेशन है कि नहीं है? नहीं है, नहीं, नहीं है. केमिकल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये फिजिकल नेचर है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये फिजिकल चेंज है। Okay. Yes, sir. Physical change तो can. ये केमिकल इक्वेशन नहीं है, याद रखना है बेटा, नहीं. ये जी sir. इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर ट्रू केमिकल चेंज नहीं आ रहा है, Okay. यहां Yes, पर sir. ट्रू केमिकल चेंज नहीं आ रहा है। ये देखो कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैथमेटिकल तो ये भी लिखा हुआ है, उनको लगेगा कि सर ने बताया था मैथमेटिकल वे, तो लेकिन ये केमिकल इक्वेशन नहीं है बेटा। Okay. और Yes, sir. इस साइन को हम लोग बोलते हैं संजना इक्विलिब्रियम, नोट कर लेना कहीं, क्या sir? जी. इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। Yes, sir. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा जिस रेट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से रिएक्टेंट बन रहा है। ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, बट मैं अभी बता रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। तो यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ, इक्विलिब्रियम का बेसिकली मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट is equal to the rate of formation of reactant। जिस रेट से बेटा आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से आपका रिएक्टेंट भी बन रहा है, ठीक है ना बेटा? Yes, that's yes, sir. ठीक है, हम लोग इसको मैथमेटिकली भी देखेंगे। चलिए, ओके, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशंस को समझा आपने। अच्छा, Yes, sir. तो आज संजना मुझे लगता है परफेक्ट हो गया है, अब इतना ही रखते हैं आज। मैं एक बार रिकैप, जी sir. मैंने सबसे पहले पढ़ाया था कितने चैप्टर हैं आपके पास, आपको समझ में Yes, sir. फिर मैंने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का नया डेफिनेशन। अब जब भी आप कॉपी में लिखोगे ये वाला डेफिनेशन पहले लिखोगे, बाद में अब अगर अपना ऐड करना है तो ऐड कर दो। Yes, sir. और That ये helps. एग्जाम्पल जरूर ऐड करना बेटा, क्योंकि एग्जामिनर ना ऐसे वर्ड्स को देखना चाहता है कि बच्चे किस लेवल तक जानते हैं चीजों को। बिकॉज Okay. Yes. अब आप सोशल साइंस नहीं पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। Yes, sir. केमिकल चेंज आपको समझ में आ गया, देन किस वे से हम लोग केमिकल चेंज को पहचान सकते हैं, तो मैंने बहुत सारे वे बताए और आखिरी में मैथमेटिकल वे समझा दिया जिससे कि केमिकल इक्वेशन को समझाना चाहिए। Yes, sir. आपको होमवर्क याद है बेटा? Yes, I remember cation and anion एनायन का और list फार्मूला, याद करना है. फार्मूला मेकिंग, ठीक And है? formula. जी sir. Formula तो बेटा लिख बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी एंजॉय किया मैंने भी यार जी sir. बात। चलो फिर, Thank you, ओके, sir. टेक केयर बेटा। सर एक क्वेश्चन, हाँ सॉरी हाँ सर, हाँ एक क्वेश्चन। हाँ। आप जो ये नोट्स जहाँ बोले थे रिकॉर्डिंग, आप कहाँ पर भेजेंगे अभी? मैं लाइक हाँ, जीमेल है? आपके पास व्हाट्सएप नंबर होगा, उधर भेज देता हूँ। यस सर। हाँ तो मैं मुझे सर नंबर दो, नंबर, एक मिनट, नंबर मुझे दे जी दो, सर, एक मिनट। एक सेकेंड, मैं लिंक भेज दूंगा वहां पर। यस सर। सर 971 प्लस 9, 971 आई मीन ओके,
then 5 6 एक मिनट प्लस 9 7 yes sir हाँ 5 plus 6 9 7 then 5 6 हाँ सर मैं चैट में लिख देती हूँ वो इजी हो जाएगा ना हाँ हाँ तभी हाँ हाँ रीचेक हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यस सर यहाँ पे plus 9 7 1